Hello everyone, this is Anjali Chauhan, and in this video I'm going to share you that how one can face the fear of failure in an exam. Why I choose this topic? Because in one of my recent videos, one of the comment was that I failed in an exam, what should I do? And I really think about this topic a lot because I also undergo this situation earlier in my life. So that's why I think it's better to make a separate video on this. That's why I prefer to make a video today. You know, fear of having failure in an exam. It's a very, very widespread topic in India because India, a major portion of the youth is preparing for different exams. It can be an entrance exam, it can be a government exam, it can be UPSC, it can be civil, it can be engineering. Everyone is preparing for exam. So having a fear to get failure in that exam is a very common topic in India. And what is my personal experience of fear of failure? Because I also gave an exam. I dedicatedly prepare for that exam for 3 years. And at the end of the third year of preparation, when I pre-decided that thing that I'm not going to give this exam anymore. Whatever the result will be, I'm not going to give this exam. And in third attempt of my NEET journey, I didn't qualify the cutoff by the margin of 20 marks. And you come to a stage of a blank stage where you are preparing for one particular exam from last 3 years and you didn't qualify by the margin of 20 marks or whatever the margin it is, and you are not prepared with a second plan. When you are not prepared with a second plan, it becomes a little bit tougher for you to just let go that exam very easily. And I decided that I'm not going to give this exam, but I not decided what the plan B should be. So after you know coming from that preparation zone, I come to a blank zone. What should I do next? I do not know what to do the next, and how that at that time I have to face the thing that I was preparing sincerely, dedicatedly. I devoted a lot of hours in that. I devoted a lot of time in that, but there is no conclusion of that. But the thing is that the plus point of mine at that time was that I was continuously and simultaneously I was doing my graduation. After completion of 3 years of graduation, completion of the journey of NEET, I have to choose whether I'm going to give this exam again or whether I have to, do my post graduation or further higher studies. So then I decided that I'm going to do my further studies, and I went for a master's, and I have done my master's in microbiology. During my master's, there were so great teachers of mine, professors of mine, who really inspired me, who really, tell me what the true potential I have. So I think when I was coming from a failure, I how I managed to change my mindset. So there are so many things which I have done at that time. The first and foremost thing which I have done is the art of letting go. No, I just surrender everything. I just let go things like that exam doesn't exist at all. I just let go. I think, okay, I have given my 100%, and maybe I didn't clear, but I had given my 100%. And okay with that. At that time, when I think that it's a power of letting go, I have just let down things that it's okay, it's totally okay with that. I cannot hold these past grudges.
And holding the past grudges, you cannot work on your present and you cannot make your future better. After doing the letting go, the one thing which I think I have done is never condemn that exam. Never condemn anything about the exam कि भाई वो बहुत टफ था, या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं हो पाया, या बहुत भीड़ हो गई, या अपर लिमिट हटा दी, ये कर दिया वो कर दिया. आई नेवर एवर डन दैट थिंग ऑन माई पार्ट. I let go the thing from my side fully, that I'm not going to think a single thing about that exam. Okay, because at that time it is very important to do that. वरना आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप उस चीज़ को वहीं से कंक्लूड नहीं करोगे या उससे आगे नहीं बढ़ नहीं पाएंगे. आपको ये करना पड़ेगा एट दैट मोमेंट. एज सेकेंड थिंग, आई नेवर कंडेम अबाउट दैट एग्जाम कि वो बुरा था या ऐसा था वैसा था, कुछ भी नहीं था. द थर्ड थिंग विच आई हैव डन is to understand that I tried the placebo effect, कि हो सकता है मैंने अपना 100% दिया और 100% मुझे रिटर्न नहीं मिला होगा. इट्स टोटली ओके विद दैट. बट मैं यहाँ से अब क्या सीखूँ आगे, मैं यहाँ से इस एग्ज़ाम से क्या, कुछ तो मैंने सीखा होगा ना. 3 years ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप किसी चीज़ के लिए करोगे तो समथिंग तो यू विल होल्ड विद योर सेल्फ, एंड वट दोज थिंग्स आर. एंड आई हैव नोट डाउन द थिंग्स, आई मेक द कैटेगरी एक्चुअली, बिकॉज चीज़ें तो बहुत सारी थी बट वो कैटेगराइज हो रही. So I categorize the thing that I, first of all, it changes me. It makes me the hard worker. First of all, मैं कुछ भी काम अगर आगे करती हूँ तो मैं उसमें अपना हार्ड वर्क पुट ऑन कर सकती हूँ. द सेकेंड थिंग, आई मेक द कैटेगरी इन बिटवीन, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने नीचे ली. द सेकेंड थिंग विच आई हैव डन, दैट आई गेन्ड अ पेशेंस लेवल, अ गुड पेशेंस लेवल फ्रॉम दैट एग्जाम. और इंडिया में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, यू विल गेट अ गुड पेशेंस फ्रॉम दैट. ये तो डेफिनेटली इट्स अ बून from that particular exam. So I categorize both the things and which उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की. देन कहीं मैंने पढ़ा था कि आपके वो पास डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ से इस प्रिपरेशन से जो भी मैंने सीखा होगा आई विल यूज़ इट इन माई फ्यूचर थिंग्स. नाउ मैंने अपना जो माइंडसेट था, वो जो बिल्कुल पहले नोसेबो इफेक्ट पे चला गया था कि बिल्कुल हर चीज़ें मैं गलत गलत ही देख पा रही थी कि नहीं ये भी नहीं हो पाया, ये भी किया, ये भी नहीं हो पाया. I turned all of them into the placebo effect. ठीक है, I given 3 years of dedicated preparation, कुछ तो सीखा होगा. एंड फर्स्ट थिंग तो मैंने यही किया कि मैंने राइट डाउन कि मैं इससे क्या चीज़ें सीखी, एंड आई मेक अ कैटेगरी ऑफ दैट. सेकेंड थिंग विच आई हैव डन, स्टार्ट रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स. उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे उस समय पे. ठीक है, और जब आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो तो आप बहुत हद तक अपने माइंड को चेंज कर देते हो. अपने जो हमारी जो थॉट पैटर्न्स होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, तो बहुत हद तक आप उसे चेंज कर पाते हो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स. तो आई हैव डन दैट. और उससे मेरा जो थॉट पैटर्न था वो काफ़ी चेंज हुआ. मैंने कैटेगराइज किया, तो अब मैंने सोचा कि मैं इससे आगे कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ये चीज़ मुझे कैसे सर्व करेंगी. सो जो प्रिपरेशन का टाइम पीरियड था, ये जो प्रिपरेशन से जो भी मैंने सीखा, मैंने उसको यूज़ किया. आई हैड गिवन 2 or 3 गवर्नमेंट एग्जाम्स इन विच आई क्लियर 2 of them विदाउट इवन रीडिंग अ सिंगल थिंग फॉर दैट. मुझे सिलेबस भी नहीं पता था उस एग्जाम. आई गिवन दैट एग्जाम क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट का एग्जाम था, एंड आई गिवन दैट एग्जाम एंड आई क्लियर दैट एग्जाम. मेरा कैटेगरी में नाम भी है, मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ, किसी और ने चेक किया, मुझे बताया कि यस यू यू क्लियर दैट एग्जाम. आई डिडंट ज्वाइन दैट. बट इट रियली हेल्प्स मी अलॉट. इट बूस्ट माई कॉन्फिडेंस इन दैट यार नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जो हमें लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है. आफ्टर दैट, वंस आई मैंने एग्ज़ाम्स दिए, आई क्लियर दोज एग्ज़ाम. आफ्टर दैट मैंने आई स्टार्ट टीचिंग. व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग, सो द रिस्पॉन्स आर वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए दैट यू आर वेरी गुड एट योर बेसिक्स. एंड एक्चुअली जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो एटलीस्ट आप उनके बेसिक्स अच्छे कर पाते हो.
और मैंने अपने सब्जेक्ट में अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। उससे मुझे बहुत हेल्प आउट हुई अलग अलग एग्ज़ाम्स टैकल करने में, अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा होने में। सेकंड थिंग मैं समझ गई थी कि टीचिंग इज़ गोइंग टू सर्व फॉर मी। ठीक है, उस एग्ज़ाम से मैं अपने बेसिक्स अच्छे कर पाई हूँ और मैं ये कर पाऊँगी आगे जाके। इफ़ आई वांट टू चूज़ इट एज़ अ ऑप्शन, आई विल थिंक कि मैं ये कर पाऊँगी। सेकंड थिंग, एग्ज़ाम्स भी क्लियर हुए तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट अप हो जाता है। ठीक है, एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि मैं जो ये मेरे पास कंटेंट है, हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज़ इट इन माय फ्यूचर प्लान्स में कैसे यूज़ करूँगी। सो आई हैव डन माय मैंने फिर हायर एजुकेशन के बारे में सोचा, एंड आफ्टर विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट, बिना सेकंड थॉट के मैंने फटाफट अपना हायर एजुकेशन के लिए आई गिव द एग्ज़ाम, prepared for that, and I gave that exam, and I currently am pursuing I'm a first year PhD scholar. So the thing is that कि आपको बहुत ज़्यादा समय सिर्फ सोचने में ही नहीं लगाना है। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, बिकॉज़ क्योंकि पहले ही बहुत सारा समय आप प्रिपरेशन में दे चुके हैं। और मैं ये कहूँगी कि बोन इन डिस्गाइज़ तो ये था कि आई वाज़ डूइंग दैट थिंग अलोंग विद माय ग्रेजुएशन। तो कभी भी होल्ड नहीं हुआ कि मैं नीट के लिए मैंने ड्रॉप आउट मैं हो गई हूँ, ग्रेजुएशन नहीं किया किसी भी स्ट्रीम में। I have done my graduation along with my preparation. I have done without a single drop. I have done my masters, and after that, I am doing my PhD without any break in that. तो नीट ड्रॉपर से अगर मैं PhD तक पहुंच सकती हूँ, और मुझे अभी आई एम वॉचिंग माय फ्यूचर, तो मुझे एस्पेक्ट्स दिखते हैं अपने अलग अलग कि मैं ये भी अच्छा कर पाती हूँ, मैं वो भी अच्छा कर पाती हूँ। ये मैं तभी कर पाई क्योंकि जब मैंने अपने आप को लेट गो किया उस स्टेज से जहाँ मैं अपने आप को सिर्फ एज अ फेलियर देख रही थी। और जब आप अपने आप में सिर्फ एक फेलियर देखते हैं तो आपको आपका जो मन है, ये जो आपका ब्रेन है और सबकॉन्शियस माइंड, इट गिव्स यू द रीजन यस यू आर फेलियर। It gives you that region of your assertion which you really feeds to your subconscious mind. If you'll feed that you are a failure, so it will give you reason yes कि आपने ये भी नहीं सेलेक्ट, आप यहाँ भी नहीं सेलेक्ट हुए, 3 साल भी लगा दिए, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। It will give you many reasons in one single, you know, it's like कि वो बिल्कुल बैठा था आपके लिए काम करने के लिए। बट इसी चीज़ को अगर आप यहीं पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको इस तरीके से लेंगे कि मैंने उस प्रिपरेशन से क्या सीखा, तो आप जो भी उससे सीखेंगे आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी डिफरेंट चीज़ों को, अपने पोटेंशियल को देखने में। और मैं हमेशा ये चीज़ें मैंने कहीं से सीखी थी और मेरे बिल्कुल माइंड में ये छप गई है, और मैं कई बार सोचती हूँ क्यों आता है, बट आ जाती है बार बार। यू मेड प्लान्स फॉर योरसेल्फ, गॉड मेड डेस्टिनी फॉर यू। तो मैं सोचती हूँ ठीक है, भगवान ने मेरे लिए डेस्टिनी बनाई है, एंड आई वर्क ऑन दैट, एंड आई एम स्क्रोलिंग माई सेल्फ, आई एम इंट्रोस्पेक्टिंग माई सेल्फ, एंड आई एम इंट्रोस्पेक्टिंग माई होल पोटेंशियल कि मैं कितना और बेहतर कर सकती हूँ। इट्स टोटली ओके विद दैट कि मैं डॉक्टर नहीं बनी, मैं हमेशा से बनना चाहती थी, बट इट्स टोटली ओके विद दैट कि मैंने प्रिपरेशन की और मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाई उस चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी एग्ज़ाम दें आप हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएं, ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं। और एक एग्ज़ाम का फेलियर ये कहीं डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप बाकी जो चीज़ करेंगे उसमें भी आप फेल होंगे। नो, बस इसको अपने माइंड का पैटर्न मत बनने दीजिए कि यस कि इस फेलियर से भी मेरी नेक्स्ट काम अफेक्ट होने वाला है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड यू नो वर्क ऑन द प्लेसिबो इफेक्ट ऑफ योर माइंड। आपका माइंड खुद आपको सारी चीज़ें बताएगा कि आप किन किन चीज़ों में कितने कितने अच्छे हैं, और वो आपके आगे बिल्कुल आपके सारे पोटेंशियल की बुक खोल देगा कि यस यू आर गुड एट दिस, यू आर गुड एट दैट, एंड यू विल बी सरप्राइज बाय योरसेल्फ दैट like you have such and such potential, great potential you have. और एक चीज़ मैंने कल ही पढ़ी थी, I was reading a book, and in that book it was written that it's totally okay to lose the battles to win the a war.
तो बैटल हारना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है टू विन द सॉरी वॉर।